सो अब हम लेते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड मानसी काइंडली हाईलाइट द टॉपिक्स. तो प्रवेश आप भी चूज कर सकते हो टॉपिक्स, तो आई गेस जीएस इकोनॉमी का ओके, तो श्योर. सो फाइनल आवर मेल्टडाउन एंड स्पाइक इन यूएस यील्ड्स नॉक्स आउट मार्केट. सो इसमें हमें ये देखना है कि किस तरीके से हाउ द यूएस बॉन्ड मार्केट एंड यूएस बॉन्ड यील्ड्स impact the Indian financial sector. So Indian stock market received a knockout punch in the last hour of trading on Monday after the news broke of US 10-year Treasury yields rising to over 5%. The Sensex, which was down by around 300 points, plunged another 500 points between just 1 hour. So this was fueled expectation of prolonged high interest rate in the US that drove US 10-year bond yields to 16-year high, besides other factors like the ongoing geopolitical tensions in the West Asia and other reasons also. So it is likely to impact the capital flows into India because the the rates remaining higher for a long period. So it will bring more capital flows in India. So no, it this is we can not learn from this. for capital inflows. कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो होगा इंडिया से, बिकॉज यूएसए में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो इंक्रीज हो रही है, तो जो इन्वेस्टर्स है वो यूएसए में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो कैपिटल आउटफ्लो होगा इंडिया से. Actually, it is written, so I was reading this only. Where it is written? It is according to Nilisha MD and US C. rates remaining higher for a longer period is likely to impact capital flows into India. तो इनटू इंडिया में कैपिटल फ्लोज, वही मैं बोल रही हूँ कि आउटफ्लो होगा, इतने ज्यादा इंडिया में इनफ्लो ऑफ कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट रेट हायर है और वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए पॉसिबिलिटी है कि उसी लेवल पे सस्टेन करेगा. तो इनटू इंडिया Okay. जो कैपिटल इनफ्लो होगा उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. तो सिमिलरली यहाँ So, पे सेम इंडियन बॉन्ड मार्केट के ऊपर यू आर सीइंग. so rich tax evaders to face 360-degree profiling. So the income tax department is likely to set a crackdown on the super rich who underpay their taxes, concerned that the cut in highest tax rate on personal income from 42 to 39% in the budget has not curbed tax evasions. So कुछ 360 डिग्री प्रोफाइलिंग के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं. द डिपार्टमेंट इज ट्रैकिंग these individuals investment profiles in expenses incurred, sources of incomes for the asset, and the taxpayer showed that annual taxable income of more than 1 crore in their tax returns. However, this number should have been much higher given the data with the multiple sources. And आईटी जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट के हिसाब से 2,16,000 टैक्स पेयर आर रिपोर्टेड एनुअल इनकम of 1 crore more in financial year 21. तो प्रवेश यहाँ पे कुछ पॉइंट आप हाईलाइट करोगे कि क्या हमने मेजर्स लिए हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया. Well, we have a faceless tax mechanism um, to avoid middlemen in the taxation. Then we have one scheme under which I'm not able to recite exactly the name. Under which, sorry. एमनेस्टी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, अनाउंस की गई हैं जो. Yes, and under which minimum a time frame has been given to the taxpayers to fill their returns and to fill the tax amount to the departments. So there are these are some multiple reasons as for now I can tell. और कुछ स्टेप्स जो अगेन इकोनॉमी को और फॉर्मलाइज करने के लिए लिए गए हैं, लाइक जीएसटी इज वन एग्जांपल ऑफ दैट. So PM bats for safe use of nuclear energy. So our Prime Minister has endorsed commitment to safe and secure use of atomic energy for the peace and development projects with a meeting with IAEA director. Our projects are going on in the nuclear science and technology, and we are going to become a responsible nuclear power. And we will use this nuclear energy in the environment friendly manner to increase the capacity generation in the energy sector and as well as in the economy. Then
it will lead to various societal benefits. These includes the remarkable progress that India made in utilizing nuclear technology for the humankind purposes like health, food, water treatment, plastic pollution, climate change. And we are also committed to the net zero target. Then we have modular reactors, micro reactors, and again the capacity building programs in various sectors are currently going on, and we are applicating them in the global south. तो यहाँ पे अगेन एक तो हम स्टेम जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वहाँ पे पार्टिसिपेशन और इंक्रीज कर सकते हैं स्पेसिफिकली न्यूक्लियर एनर्जी में. इसके अलावा वी आर फोकसिंग अपॉन दी स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड साथ के साथ वी कैन अगेन हाउ दी the skills and the expertise that we have in this particular area वो हम कैसे इवन अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं. सो दिस कैन बी अगेन वन सब पॉइंट कि अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट में इंडिया कैन कम फॉरवर्ड इन दिस एरिया ऑल्सो. So we can take this up. Okay. So LNG import bill is down by 30%. Okay, so a decline in the global price of liquefied natural gas in the initial months of this fiscal, and India's import bill in the first half will fell by nearly 30%, according to the projections of the ministry, and it will lead to the increased demand and reasonable prices of the commodity in the international market. India's import of LNG rose by 70.5% in the September month, particularly by the fertilizer units which use gas feedstock for the urea manufacturing. And the prices of spot LNG have risen during the past few days due to the escalating conflict in the Middle East and is currently being traded at this level. So देखने की चीज ये है कि किस तरीके से जो ग्लोबल टेंशंस है वो ट्रेड के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं. एंड या only this much we can take from this topic. एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न है और इसमें हम जो एरिया और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज से हम स्पेसिफिकली इंपोर्ट कर रहे हैं एलएनजी. सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. एंड अगेन ये जो कंसर्न है इसके लिए एज अ सोल्यूशन इज वी कैन शॉर्ट टर्म के लिए हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ट्रेड पार्टनर्स इंपोर्ट पार्टनर्स एज फार एज एलएनजी इंपोर्ट्स इज कंसर्न्ड, like it was done in case Yes. of crude oil also. Mansi, And Yes, Harshit. I want to add one point that Qatar is the largest supplier of LNG to India. Okay. It is around 40 to 45%. हाँ तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट पार्टनर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए. और इवन रिफॉर्म्स की भी अगर हम बात करते हैं तो प्राइसिंग रिफॉर्म्स में भी क्या प्राइसिंग मैकेनिज्म है दैट कैन बी वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. yes. So you can see कि क्रूड ऑयल के ऊपर भी जो हमारा रिलायंस है दैट इज बीन इंक्रीजिंग. इट हैज रीच्ड 87.8%. So yeah, so India's high dependency on the imported crude oil, sluggish domestic oil output in the face of continually growing domestic demand has led to reliance on more imports arising this year. And the computation of import dependency is based on domestic consumption of petrol products and exclude the petrol products export as those volumes do not represent India's demand. So एक concept हम ले सकते हैं कि what is computation of import dependency, where we have to reduce the export amount of our petrol products from the import product. ऊपर ले लो आप प्रवेश, कोटेशन ले लो ऊपर में कोट ऊपर वाला. विजय शेखर शर्मा. हाँ. ग्रीन मोबिलिटी और कौन सा वाला? हाँ, ग्रीन मोबिलिटी पर हर पेज नीचे वाला ग्रीन मोबिलिटी. Okay, so we believe that hydrogen to be the fuel of the future, especially for the CVs, with a new dedicated R&D facility to develop indigenous hydrogen propulsion technology. We are entering in a new era of technological innovations and advancements in green mobility. So today, when we are seeing that in the capital of India, not only the CNG buses and the EV buses are going on, but also the hydrogen fuel-led buses are also going on. So we are focusing on the hydrogen technology and hydrogen propulsion technology to increase our advancements in the green mobility.
एंड अलग अलग जो हमारी इंडस्ट्रीज है वहां पर भी अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो हाइड्रोजन है उसको एक फ्यूल की तरीके से यूज करके और एक ग्रीन मोबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए। तो यहाँ पे हाँ, सिंस तो यहाँ पर मोबिलिटी लिखा हुआ है, तो सिंस यहाँ पे एक तो खाली हाइड्रोजन वर्ड यूज किया गया है और ग्रीन मोबिलिटी यूज किया गया है, तो ग्रीन मोबिलिटी के लिए स्पेसिफिकली ग्रीन हाइड्रोजन यूज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करती है और जितनी भी टाइप्स हैं उनमें से सब बेसिकली कार्बन न्यूट्रल नहीं है। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगेन जब हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स या प्रोसेस की भी बात करते हैं, तो फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो उसमें जो बाय प्रोडक्ट रहता है दैट इज ओनली स्टीम, या फिर आप ओनली वाटर बोल सकते हो, बट दैट इज मोर लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जो एक ओनली बाय प्रोडक्ट रहता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अगेन कार्बन न्यूट्रल आल्सो। सो फोकसिंग अपॉन ग्रीन हाइड्रोजन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। further to that, Pravesh, uh, could you please tell me how green hydrogen is fuel of future, and it is better than EV, currently EV, based on lithium-ion batteries? कैसे, मतलब फ्यूल ऑफ फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन क्यों माना जाता है लॉन्ग टर्म में? इंडिया is also investing in it around, it is targeted to be around 5 million ton by 2030. तो हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन पर, क्यों बेटर है? दो वो तीन इसके 2 या 3 रीजन मैं अभी बता सकता हूँ। सबसे पहला तो ये कि इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो ईवी के मुकाबले थोड़ी कम है। दूसरा, जो ईवी का जो ईवी की जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है वो लिमिटेड है और लिमिटेड ही रहेगी जब तक हमारे पास जो इंफ्रा क्रिएशन है और प्रॉपर R&D है वो नहीं आ जाती। क्योंकि हाइड्रोजन में हमारे पास R&D है, लेकिन अभी फिलहाल के इंसिडेंट में आप देखें कि इंडिया के शायद किसी स्टेट में ईवी व्हीकल वो सेट ऑन फायर ऑटोमेटिकली। सो ये कुछ कंसर्न्स हैं हमारे जो बायर्स हैं उनके लिए और जो प्रोड्यूसर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी, कि किस तरीके से इसकी सस्टेनेबिलिटी पे काम किया जाए। तो अभी उसका कुछ प्रॉपर R&D है नहीं हमारे पास एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन फ्यूजन एंड फ्यूल। और तीसरा इसमें यह कि तो प्रवेश, हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो भी तो कंबस्टिबल है, उसको भी अगर फायर लग ही सकता है, तो मतलब सेफ्टी नहीं, उसको इसमें फायर आप लग सकता है, लेकिन जो ईवी है उसमें मतलब वी हैव सीन दैट इट इज नॉट एक्चुअली लीडिंग टू अ सेफ एंड सिक्योर थिंग एज पर नाउ। तो सेफ्टी मैं ऐड करूंगा दोनों में है। जो अच्छा जो आप मेन लेके नहीं है, मतलब मेन पॉइंट जो है ना, ईवी क्यों फायदेमंद है ग्रीन हाइड्रोजन। पहली बात है कि हाइड्रोजन अबंडेंट है पूरा वर्ल्ड में, 1% जो दुनिया में, मतलब पूरा वर्ल्ड में एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन है। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक एरियाज में रेयर अर्थ मेटल चाहिए, वो रेयर अर्थ है बेसिकली। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन तरफ जाना चाहिए, पहले ये हो गया। दूसरा कि अब जो लिथियम आयन बैटरी है उसको रिसाइकिल कैसे करेंगे, वो अभी इस पर काम नहीं हो रहा है। उसको कैसे रीयूज करें, काम नहीं हो रहा है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन कैसे बनाना है, और इजी स्टेप है उसका। बस और एक खाली प्रॉब्लम ग्रीन हाइड्रोजन का, हाँ, कि सेफ्टी का है, और उसको कैसे हम लोग स्टोर करें, क्योंकि हाईली प्रेशराइज हाइड्रोजन को स्टोर करना पड़ता है छोटा से जगह पे, तो फटने का चांस ज्यादा है, मतलब तो उसको कैसे स्टोर करें, बस एक चैलेंज। लेकिन ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन विल बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, जो लिखा है ना फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तो उसी कारण ही होगा लॉन्ग टर्म। एक और पॉइंट जो मैं ऐड अप करूंगी इसमें, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन न्यूट्रलिटी का एक कंसर्न जो एसोसिएटेड है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो कहाँ से आ रही है, क्या वो रेन्यूएबल सोर्स से जनरेट हो रही है कि फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो रही है। तो वो कंसर्न अगेन हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स में नहीं है। और आप प्रवेश ये बताइए, तो ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन में क्या फर्क है, मतलब इन जनरल? प्रवेश बताना आप, मतलब मानसी को तो पता ही है। अरे आप ही बता दो यार। अरे नहीं मतलब नहीं, बहुत बताया ना आप, साइंस एंड टेक है ना, तो इसमें पूछ देता हूँ। हम्म नहीं नहीं, मेरे को इसकी नॉलेज सिंपल है नहीं है, ना, तो आप बता दो। ग्रीन हाइड्रोजन है ना, वो ग्रीन है बेसिकली, उसका जो सोर्स ऑफ पावर है ना वो सोलर रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रे मतलब कि ग्रे वाटर बोलते हैं ना, ग्रे वाटर ब्लैक वाटर, तो वैसे हम्म। ही ग्रे वाटर जो है वैसे ही ग्रे ग्रे हाइड्रोजन, उसका जो सोर्स होगा ना वो कोल्ड रहेगा, या कुछ और जो अनकन्वेंशनल एरिया रहेगा, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा, तो वो पोल्यूटेड पॉल्यूशन फैलाएगा, तो इसलिए ग्रे बोलते हैं उसको। ब्लू होता है कि आप अगर वाटर रिसोर्स से निकाल रहे हो हाइड्रोजन, तो ब्लू एक हो गया, ऐसे टाइप से बाकी सब नाम किया हुआ है।
ठीक है। तो सबसे बेसिकली बेस्ट जो है हाँ ग्रीन है बेस्ट, बट जो प्रोसेस है ना इनको मैन्युफैक्चर करने का, वहां पे स्पेसिफिक टर्म्स है साइंस के, जो केमिकल प्रोसेस यूज किए जाते हैं, तो वो हाँ। साइड में होना इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो वर्ड बस याद रखिएगा प्रवेश, इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखिएगा ग्रे हाइड्रोजन में बस। ग्रीन के लिए ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस है। तो आई थिंक अब हिंदी न्यूज़पेपर ले लेते हैं। तो दिव्या, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ मानसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपने हाईलाइट किए हुए आर्टिकल्स या चूज करना है अभी? हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं फिर हम। तो आप कोशिश करना कि मतलब समरी के फॉर्म में ही बोलो, अभी ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब आइडियाज डिस्कस करेंगे जनरल में। तो कौन से पेज पे है? ये यहाँ पे है, ठीक है। 2030 तक ब्राजील के साथ $50 अरब के व्यापार के लिए इंडिया ने लक्ष्य रखा हुआ है। इसका अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पर $30 अरब तक का व्यापार किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य इनमें दो ग्रुप चुने गए हैं। जो एक से ग्रुप होगा जो बाजार की पहुंचों को देखेगा कि बाजार में क्या जरूरत है, और दूसरा सेक्टर इस चीज का चयन करेगा कि किन सेक्टरों को इसके अंदर चुनाव किया जाना चाहिए, गठित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ब्राजील के साथ भारत किस सेक्टर में डेवलप कर सकता है, तो बायोफ्यूल और नवीनकरण ऊर्जा के दोनों के में देख सकते हैं, क्योंकि ब्राजील के पास जो है पेट्रोल और डीजल का एथेनॉल मिलाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी है। इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल को लेकर मिलाकर एथेनॉल की मदद से ये चीजें की जा रही हैं, पर उसके लिए एथेनॉल की क्वांटिटी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसके लिए भी ब्राजील के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें नवीनकरण ऊर्जा में भारत की मदद कर सकता है ब्राजील। इकोनॉमिक्स के अलावा इस फैक्टर पर ब्राजील के साथ देश में देखा जा सकता है कि किन चीजों पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे मानसी, यहाँ पर एक चीज ग्लोबल कहना साउथ है, आपसे कोऑपरेशन भी क्वेश्चन है प्रमोट होगा। हाँ पूछो। कि हम लोग हमेशा बात करते हैं ब्रिक्स का और फिर इंडिया यूएस रिलेशनशिप, वैसे इंडिया ब्राजील में सबसे मेजर क्या एरिया जहाँ पर कोऑपरेट हो सकता है इंडिया और मतलब ब्राजील के बीच में, तो क्योंकि हम अभी लोग कम न्यूज में पढ़ते हैं इंडिया। दिव्या ने हाईलाइट तो किया, और हाँ कौन वो सी तो चीज़ हो हो सकती है? गया सर। हाँ, उसके अलावा तो अभी दो। ये तो इकोनॉमिक एरियाज हो गए। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल स्फेयर में बात करें तो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन और स्ट्रेंथन हो सकती है। एंड यस, विद दिस ग्लोबल साउथ कंट्रीज में जो रेन्यूएबल एनर्जी के अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो दोनों कंट्रीज मिलके उस चीज को भी एड कर सकती है, प्रमोट कर सकती है। विद दिस अगेन शुगर आई थिंक कौशिक। हाँ, वो तो एग्रीकल्चर। लेकिन है ना, वो तो इथेनॉल की बात हो गई है। हम्म। तो ये कुछ एरियाज हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस तो आई कांट स्पॉट एनी तो अदर। ग्लोबल साउथ हो गया, हाँ। ब्रिक्स में कोऑपरेशन हो गया, डब्ल्यूटीओ में कोऑपरेशन हो गया, फिर और दूसरा बायोफ्यूल सेक्टर हो गया, मतलब उसके एडवांस बाद को भी जरूरत पड़ेगी हम्म रिन्यूएबल एनर्जी की। तो अगेन वो जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में भी जो कोऑपरेशन है, वो कहीं ना कहीं, और वो भी स्ट्रेंथन हो सकता है विद दिस। हाँ ठीक। दूसरा ले लो हाँ ये है। दिव्या। आरबीआई ने ये पोर्टल पे बॉन्ड, बचत बॉन्ड थे है ये 2011 में 21 में बचत ब्रांड से जुड़े हुए प्रधानमंत्री ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंदर जो आम आदमी डायरेक्ट बिना किसी मिडिल मैन की हेल्प के इन्वेस्ट कर सकता है, और जो 7 साल के लिए लिमिटेड रहेगा। इस पोर्टल के जरिए वो डायरेक्ट केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों या राजकोष बिल या सोवरेन बॉन्ड होते हैं, उनके अंदर निवेश कर सकता है, जो कि सरल होगा, और उसके अंदर मिडिल मैन की जो जरूरत है वो खत्म हो जाएगी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के जरिए। एक बार रजिस्टर करवाने के बाद वो 7 साल तक वैलिड रहेगा कि 7 साल तक वहां पर यूज किए जा सकते हैं वो चीजें। हाँ, तो बेसिकली ऑनलाइन जो पोर्टल है उससे जो जिस ईज से जिस आसानी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक तो वो चीज और ज्यादा सहायता करेगी इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने में। उसके साथ ही साथ क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, तो जो लोगों का ट्रस्ट कर भी लगाया जा सकता है, इन पे कर हो गए, होगा। इनसे टैक्सेशन भी बढ़ सकता है उसके। हाँ, टैक्सेशन टैक्सेशन तो नहीं, टैक्स फ्री होती है। और उसके अलावा अगेन
कर योग्य है लिखा हुआ है, इन्होंने तो ये ब्रांड कर योग्य है, तो उसके ऊपर टैक्स और अप्लाई जो हो सकता है। इसमें छोटे निवेशक जो हैं सॉवरेन तो गोल्ड उनको भी फंड सहायता हो सकती है कि आप कि छोटे अमाउंट में, छोटे प्रिंसिपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो हाँ पहले जो पॉसिबल नहीं। स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ जब हम ट्रेंड की भी अगर बात करें, अगर हम देखें कि गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स अगर उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो मार्केट के लिए एज अ हम सेंटिमेंट की जब बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं होता है। या ओवरऑल जब हम इकोनॉमिक हेल्थ असेस करते हैं ग्लोबली भी, तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो इट इज नॉट अ गुड साइन। हम्म। अब बगल में जो आर्टिकल है इसमें डिज्नी का भारतीय कारोबार खरीदी रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इसमें बताता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है एज रिस्पेक्ट टू कन्वेंशनल एरिया, जो टीवी ये सब था। तो $10 बिलियन में हो सकता है यह सौदा। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में अगर कारोबार बढ़ रहा है तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि आईटी जो रूल्स था उसको कैसे हम लोग उसको और अच्छे तरह से बना सके और कैसे उसको इनैक्ट कर सके, ताकि इस पर भी मॉनिटरिंग करना जरूरी है कि कैसा कंटेंट आप ओटीटी पे आ रहा है। कंटेंट डाल रहे हो, क्या वो 18+ हो, 18 से नीचे हो, या फिर हार्मफुल सुसाइड से रिलेटेड हो। उस पर जरूरी है इस पर करना। क्योंकि तो इसमें जैसे देख रहे कोई हैं भी कि हाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कि जो अगेन हाँ चाइल्ड सेंसिटिव वो सेंसरशिप कंटेंट है नहीं लगा दैट सकते। तो रेगुलेशन के अराउंड कंसर्न्स है सिंस अभी तो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज ही हैं। सो मतलब सेल्फ हाँ रेगुलेशन में ही अभी फोकस किया जा रहा है। सो एक ही कंसर्न हो जाता है। और जब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदेगी तो कहीं ना कहीं मोनोपोली हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की दिख रही है, कहीं ना कहीं नॉट जस्ट एक स्पेसिफिक सेक्टर में, डिफरेंट मतलब पेट्रोलियम में, एनर्जी में, कंज्यूमर गुड्स में, देन टेलीकॉम सेक्टर में, सिनेमा में, कहीं ना कहीं जो मोनोपोली है वो एलिमेंट भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक ये हो गया। हाँ, तो दिव्या कुछ बोलना है आपको? हम्म, अगर सेंसरशिप जैसे एंटरटेनमेंट जो मिनिस्ट्रीज है वो मूवीज के ऊपर इनके ऊपर सेंसरशिप लगा देती है या A+ के सर्टिफिकेट दे देती है, तो इस टाइप का कुछ ओटीटी पर शायद अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम्म। उस चीज के ऊपर देखा जा सकता है कि किस तरह से हाँ। उनके मतलब रेगुलेशन मेरे अप्लाई हिसाब किए जा से सकते जैसे मूवीज के ऊपर सेंसरशिप बोर्ड है तो आई गेस वो सेम चीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी होनी चाहिए, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कंज्यूमर बेस है आई होप कि वो मतलब आई गेस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो वो इम्पैक्ट जो ज्यादा है। है हाँ ठीक। हाँ, ध्यान में मूवीज को सर्टिफिकेट मिलते हैं A+ या 18+, उस टाइप का भी कुछ अप्लाई किया जा सकता है। रेटिंग सर्टिफिकेट्स रहते हैं। ऑटो अपील सिस्टम देख सकते हैं इसमें। नोटिफाइड सरकार सेवा है, अगर अपील ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं होती है तो उसके साथ साथ उस जिस भी के अंदर वो आती है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा पहला राज्य बना है इस तरह की स्कीम को लागू करने वाला। रेट टू सर्विस है जो कि हरियाणा में लागू होगी। ऑटो अपील सिस्टम में शिकायतें देख सकते हैं कि अभी तक कितने समाधान किए जा चुके हैं। तो इसका निर्धारित समय काम ना होने पर भी संबंधित अधिकारी के जुर्माना और विभाग से संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। तो हरियाणा पहला राज्य बना है ऑटो अपील को लागू करने वाला। प्रवेश, ये यहाँ पे जो जो जुडिशरी राइट टू सर्विस एक्ट है इसको हम लोग मॉडल ले सकते हैं और भी एरियाज में कि कैसे राइट टू सर्विस में आप सिटीजन अपील और सिटीजन ग्रीवांसेस उसको कैसे टाइमली मैनर में उसको रिड्रेस कर सके। तो ऑटो ऑटो अपील सिस्टम जो है, इसे इंग्लिश होगा डिफरेंट होगा, अपील नो सेम ही होगा, ऑटो अपील सिस्टम होगा। तो इसमें कैसे उसको बढ़ाया जा सके। आप कुछ कहना है प्रवेश? तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे चलते बेसिकली जो ओवरऑल स्टेप है अफोर्डेबिलिटी ऑफ जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पारदर्शिता और जवाबदेही मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से और प्रमोट होगी। हाँ। तो ये ले सकते हैं किसानों का कर्ज माफ, इसके क्या ये एग्जांपल है हम्म हाँ, फ्री और इसका कल्चर का। तो बेसिकली फार्मर सुसाइड्स के केसेस भी अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जो फ्रीबी वाला पॉइंट आपने बोला और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये पार्ट हो जाता है, देन क्वालिटी ऑफ एसेट जो बैंकिंग एसेट्स है उसको ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो
जो क्रेडिट लेंडिंग एक्टिविटीज है, जो डिसीजन मेकिंग है बाय द बैंक्स, उसको भी ये इम्पैक्ट रहता है। और जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं फिर बैंक्स प्रेफर करते हैं कि फार्मर्स को ना दे, बट सिंस वो अगेन मैंडेटरी पार्ट है, प्रोविजन है, तो वो बैंक्स को करना पड़ता है। ठीक है, एग्री विद मानसी इसमें कि उन्होंने बताया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड बैंकिंग। मैं बस थोड़ा ऐड करूंगा कि किसान को भी अगर फ्रीबी लगातार दिया जाता है तो उनका एक दिमाग में लैक्सिटी, एक माइंडसेट हो जाता है कि अब तो मेरे को फ्री, अगले बार भी कर्ज तो हो गई। तो उनका जो एक प्रायोरिटी होता है विद रिगार्ड टू पर्सनल स्पेंडिंग, कि आपको इतना ही सीमित अमाउंट में खर्चा करना है, वो नहीं हो पाता है। और अगले साल फिर से वेट करते हैं, अगले बार फिर से लोन का माफ का। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही नहीं कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फार्मर भी, और उनको भी एक तरह से। पॉलिटिकली भी ये वोटर्स की जो डिसीजन मेकिंग पावर, उसको भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। हाँ हाँ। मिजोरम में भी तो इंस्टेड कांग्रेस ने ऑफ 750 जब आप अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हो, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर वो लोन को माफ करने की बजाय ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स या उसकी प्रोग्रेस की बात करेंगी, तो वो चीजें ज्यादा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सूटेबल, सस्टेनेबल रहेंगी। हाँ हाँ हाँ। दीगा कुछ तो कहना है मुझे आपको? ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, मतलब हम्म एथिकल एंड फेयर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक सॉल्यूशन हो सकता है, जहाँ पर फ्री बाइज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिव्या किसान बोलिए। की कर्ज माफी के अलावा यहाँ पर मिजोरम में 750 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया गया है। इसको भी हम प्रीवीज की तरह, मतलब पॉपुलरिज्म जो कल्चर है उसकी तरह देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेंशन देने के लिए बात की गई कि हर महीने 2,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी। तो ये सारी ही उस चीज, किसान कर्ज के साथ साथ उन सारे पॉइंट्स के इन्वॉल्व होंगे इनमें भी। नहीं, तो इसमें सबसे बेसिक नहीं इम्पोर्टेंट ये है कि होगा। हाँ, पैसा आएगा कहाँ से? पैसा पैसा आएगा कहाँ से? पार्ट ऑफ स्कीम्स भी पैसा हैं आएगा। कहीं ना कहीं, जो एलपीजी, जो बेसिकली सिलेंडर्स की भी बात की जा रही है। तो अल्टीमेटली जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि इन स्कीम्स का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्या वो सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा नहीं रहेगा। तो इस एंगल से इन जो डिफरेंट डिसीजंस है उनको असेस करना इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली फिस्कल बर्डन जो है वो तो एक मेजर पॉइंट रहेगा ही रहेगा। और दूसरा मुझे कि ऐसा लगता है कि ये जो जितनी भी टैक्स पेइंग चीजें, कम्युनिटी है इंडिया में, उसको बढ़ जाएगा इसमें। मैं बस आप और मुझे ये लगता है कि जितनी भी चीजें होती हैं, ये सिलेंडर सस्ता देना और कर्ज माफ करना, ये खाली बोलने की होती है। क्योंकि ना तो जैसा कौशिक ने बोला पैसा आएगा कहाँ से, तो सरकार पे पैसा नहीं होता है, तो जैसी सरकार बनती है चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। अगर आप पीएम किसान योजना की भी बात देखो, तो उसके अंदर भी आज के टाइम पे अगर आप रियल बेसिस एनालिसिस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ स्टेट, स्कीम की जो पेमेंट है ना तो वो ढंग से होती है, और टाइमली पेमेंट की तो बात छोड़िए, उसके अंदर जो है फ्रॉडलेंट मैकेनिज्म है। मतलब जिसके लाखों लाख, मतलब लाखों लाखों जिसके घर में सैलरीज है और सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं, वो भी उस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। तो जब तक हम प्रॉपर बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई नहीं करते, उनको कास्ट या वोट के मुद्दों से हटकर सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस की तर्ज पर नहीं उनको सहायता करते, तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। पीएम को मिले उपहारों के लिए तो वो स्किप कर सकते थे दिव्या, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो गया है मेरे हिसाब से कंप्लीट, या और भी है कोई हाँ आर्ट? हो गया, नहीं हो गया कंप्लीट। हो गया है? ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं आज का सेशन। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ कल जुड़ सकते हैं, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।